Messi advancing, going down the track, putting it back over his head, first ball. Yes, I think sometimes, Amara says this is the only way that I'm going to play. They have hit it for twice. Okay, and that's gone for 4 straight away. Exquisite timing. But there you are. No, with the high back flip, the bat comes down. He doesn't really have to hit it too hard. It's just the momentum of the bat coming down from so high that propels the ball to the boundary. His grip is pretty high on the bat handle as well. Really is a terrific striker. Oh, that's a very good delivery. That's beautifully bowled by Afridi. Good pace too. Yes, very good pace. Now this is where Abhishek Sharma has to just watch out. Because look, he's gone away from the stumps, looking to attack so early. See where he's gone. See where he's gone. Why open the door? You do not need to do anything different. He loves getting wickets in the first over. Afridi, we know that. Inside edge, onto the foot. But the fine last deliveries, comeback deliveries from Afridi. 145 k's per hour that last delivery. He's running in well. Change Afridi. All his deliveries have been over 141, except in the second one, which was about 139. And this last one was 145. They don't have to finish the match in 16 overs. So they just have to win this game. Charging in Afridi. A little bit leg side, that's picked up. Should be just the one, it is. We'll bring Gill down to the business end now. You're going to have to get a couple of quick wickets right at the top. Pakistan, I would suggest in that power play they need at least 3. At least 3. Yes, I think that first power play they get wickets to put India onto the back foot. Exactly like what we did to Bangladesh a couple of days back. Bangladesh weren't chasing too big a total. India not chasing too big a total. The required rate at the moment is a little over 7.4. Last ball, the first over. That's away. Goes off the mark. Coming back for the strike. That's what I wanted. They've got Abhishek eventually. That is massive. And not surprising, really. Not surprising. Seeing the way he batted that first over, he was always going to be taking that big risk. And like I kept saying, do not open the door. Just get off to a solid start. You don't have to get up to a 50 runs in the 6 overs kind of start. Look at that. Simple catch. And the big man, the man that they are worried about, he goes. Abhishek Sharma has gone for 5, 7 for 1. Back to his stop pace. Yes. Very much. Ashraf is a medium pacer. He'll bowl around the 135, 140 mark. He got a fabulous strike rate as well, 164.65. 150s and 400s in T20 cricket, T20 international. That is a terrific record. I mean, he's enormously talented, but he's had a tough year. 99 runs at an average of 12, a strike rate of 110, high score of 47. Not on his greatest nick right now. I just need a couple though to hit the middle of the bat and they'll be away, but they're going to make sure Pakistan, they keep them honest. Yes, absolutely. They are not chasing 190 plus, they're chasing only 147. It's a slow delivery first up. They have to reach for it. Already decided that the first volley is going to go the aerial route. Fahim Ashraf bowls it wide, bowls it slow, and gets his man. Had a string of 30 plus scores, 7 of them actually, Abhishek. Had he done that again tonight, he would have been the first to get 8 in a row. Not to be though. But that's 1 wicket for Pakistan.
Gallon strike now. Stopping that one in the cover region. No run there. Normally, when you have the power play of 6 overs, you look to take advantage of the 2 fielders outside the 30-meter circle. But here, your asking rate is reasonable. It's not something in the region of 9 or 10 runs and over. So you don't really need to take any risks. All you need to do is get off to a solid start. Even 35 for 1 would be a great start. Slow ball again from Fahim, which gives us pace nicely. Nicely disguised. Very going to change in his delivery action. It's only the last moment it pulls the speed back. So wicket off the first ball of this over, the big wicket of Abhishek, and there's only been 1 run since then. It's been good bowling from Fahim, that slow ball first up. Abhishek, I think, was expected pace on, and the end had a reach for it, just scooped it to Haris Rauf. East away on the onside. Coming back for the second. 10 for 1. And the man who picked up most of the wickets today was Kuldeep Yadav. He was absolutely outstanding. He got a little bit of tap in his first couple of overs, actually. Yes, but after that, when he got this wicket, he was back to his best. Stops the batters with his long ones and the normal leg spinner. 4 wickets he takes. 4 wickets. And he brought India back in the game. Kuldeep did. And brilliant. 3 in his last over. Superb stuff. 17 overall. Top of the pots and the wickets by some distance, actually. Kuldeep was terrific when he got his teeth into the game. Striving for the big Yorker. Good delivery there. Very good. Fast, straight Yorker. Getting the ball to curve into the right-handed Suryakumar Yadav. 17 wickets in the Asia Cup. Over here, Junaid Siddiqui, UAE's second best, along with Shaheen Shah Afridi and Mustafizur, as well as Haris Rauf. Haris Rauf and Shaheen Shah Afridi have a chance to go to the second place. Well, Pakistan played him really well initially, but then once he got into the game, once he started to turn up both ways considerably, they were nowhere really. Pretty again. In the air. Out. Out. Now it's out. Couple of juggles. Captain's taken that. Skipper for Pakistan is happy. Skipper for India has gone nowhere. But just like I said, don't allow Pakistan to get in the game. India just allowing Pakistan to get into the game. I have checked the field. It's a fair delivery. Give me the best angle, please, for the catch. Can you zoom up that, please? Can you zoom up that? It should be fingers underneath the ball. Have you got any other angle also, please? So go back to the other first angle, please, one before that. Yes, keep it rolling through frame by frame. Yes.
Their fingers are underneath the ball being carried to the hand. I have a decision to the giant screen. What's the call? Out it is. Big wicket there. Manfredi, an opportunity to just tail up. He's picked up the huge wicket, the opposition captain now. Tilak Varma's arrived at number 4. They're not in form, like Suryakumar Yadav hasn't been in the best of form apart from that first game against Pakistan where he smashed 47. So all the more reason to try and play it along the ground rather than go the aerial route. Because your timing will not be there, because your form is not good. Slip in position, second slip. That's the ball from Afridi. Look at the numbers of Tilak Varma playing his 31st innings, 30 up until now. Average of 50 is terrific stuff. Strike rate of 150 is outstanding as well. High score of 129 out against South Africa. Remember that one? Top knock. Scrambling one and he's off the mark. Have a look at this shot. This has gone nowhere near. And he knows as soon as he's hit it that he's going to be in trouble. That's a fine catch. The top class catch that. The skipper himself, Salman, taking a superb catch. Getting his fingers under the ball. Another slow ball as well. 2 wickets to 2 slower deliveries. One from Ashraf, one from Afridi. 1 run from this over up until now, and the wicket. We're 1 ball shy of 3 overs, 11 for 2. A couple of issues with the lights. I guess it's no more than about 10 metres of lights, maybe 12 metres of lights that have just gone off. They're the only ones that I can see that are not working at the moment. There you go. It's a bit wide. It's reached it in the end. They're going to come back for the second. No, this time they stay with just the one. Want to take it back now to the last ball of the last over. I'm actually baffled by this Indian rush. I've just not understood what the unholy rush is. Look where he is. There's no chance. He would have been run out by miles. By miles. What is going on? Why are they panicking? Why are they playing the kind of cricket that they are doing? Because Aman was the man that was charging in. There would have been 3 for 12. But no, 3 for 11. So there would have been. That would have been interesting. So that's someone like Gill out. Here's number 39. Couldn't find the timber. But that throw. This is good cricket. They've taken two runs of the first 2 deliveries. Risk-free cricket. Take singles, maybe the odd 2. We're about 7-8 runs. Don't worry about the power play situation. Don't worry about those 2 fielders outside the 30 meters. You don't need to take advantage of that at the moment. You just need to play sensible cricket. Slow delivery again. He's on the onside. Should be able to come back quite comfortably for the second now. 16 for 2 it is.
One wicket going down with 7 on the board, the other one with 10 on the board. Put India on the back foot straight away. Very first delivery of Fahim Ashraf to Abhishek, slower delivery. Reached it, just scooped it up. Harris took the catch. Well, he was pretty pumped up. Afridi was in the game. Good catch from Salman Ali. A bit of juggling, got his fingers underneath it initially. And Afridi's got his teeth in this game too now. And it'll be interesting to see if the captain gives Afridi another over. The ball is going, he's got a good rhythm going. Strikes them out of mid-on. Working it hard in that region. Again, the slow ball from Ashraf. Lots of chat out there from Pakistan, as you'd expect at this stage. They would have been hurting at the halfway mark. Yes, but at the moment it's just encouraging their bowlers, which is absolutely fine. It's all just encouraging the bowler, making sure there's a real buzz in the field. Well, it's a nice shot, it's a lovely shot. Really nicely played. That is real talent from Gill. And she's medium pace, anticipating that this one would be a slower delivery. Going down the pitch, and then when Fahim seeing the Gill come down the pitch, dropped the shot, he got into position so quickly, he's dropped the shot there. See, as he saw it come down, and he placed his putt shot really well. Gets right on top of it, makes good use of his height, rolls his wrist to ensure the ball is hit along the ground, but powerfully between those two fielders. Not likely to miss out on the pull shot, that's for sure. So 8 off the over. Last ball of over number 4. Once more, he's gone over the top. No, he's out. Good catch from Harris Ralph. He's got his second now. That is another big wicket. Pakistan will be delighted with the start they've had here, and their spectators are right behind them. They're throwing it away. India are just throwing this match. ओवर्स का खेल हुआ है. पावर प्ले ओवर्स के दौरान अगर आप 3 विकेट्स गंवा देते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव बैटिंग साइड के ऊपर जरूर आता है. जब बड़ा लक्ष्य बोर्ड पर ना हो, आप खेल के मैदान में बल्लेबाजी करते हुए लापरवाही बरतेंगे तो उस लापरवाही के दुष्परिणाम झेलने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए. अब तक की कहानी भारतीय पारी की यही रही है. 3 विकेट्स गंवाए हैं, तीनों ही विकेट स्लो ओवर के ऊपर हुए हैं भारतीय टीम ने. पहले अभिषेक शर्मा हुए, फिर सूर्य कुमार यादव और पिछले ओवर में शुभमन गिल. चेंज ऑफ पेस के बल पर मुश्किलें पैदा की, परिणाम एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए. 19 गेंदों पर 13 रन बने और एक बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए कि पावर प्ले ओवर्स में भारतीय टीम के ऊपर दबाव बना दिया है. कमेंट्री बॉक्स में मैं मनोज और मेरे साथ है प्रवीण कुमार सुर. बिल्कुल ठीक कहा मनोज आपने. बल्लेबाजी अगर आप लापरवाही से करेंगे तो आप हमेशा भुगतना पड़ेगा आपको. और तीनों विकेट जो स्कोर गेंद पर मिले हैं वो 2 मिले हैं वहां पर फरीम अशरफ को और 1 बड़ा शाइन अफरीदी. अब बड़े स्कोर खेले जा रहे हैं और कैजुअल अप्रोच के साथ खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका खतरनाक परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है. टीम उसको दबाव में है. 3 बहुत बड़े विकेट टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपके पगले में जा चुके हैं. शुभमन गिल, कप्तान सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा. तिलक वर्मा और संजू सैमसन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. समझ को खेलना होगा. बहुत बड़ा लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे हैं और केवल 147 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए. मगर अब ये स्कोर बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि भारत ने 3 बहुत बड़े विकेट 21 रन पर खो दिए. एशिया कप के दौरान भारतीय मिडिल ऑर्डर के ऊपर बातचीत हो रही थी कि टॉप ऑर्डर अच्छा काम कर रहा है तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर दबाव नहीं बन रहा. लेकिन आज असली परीक्षा है मध्यकर के बैटर्स की. ये वो स्पीड, लगातार चेंज ऑफ पेस किया है, मुश्किलें पैदा की हैं भारतीय बैटर्स के सामने. जब बोर्ड पर बड़ा लक्ष्य नहीं होता तो कहीं ना कहीं अनुशासन के साथ बल्लेबाजी की जरूरत रहती है. आप शुरुआत अच्छी दीजिए ताकि मिडिल ऑर्डर के ऊपर कम दबाव बने. लेकिन इस समय दबाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है. शायद 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी के 36% उन्होंने अच्छी गति और उछाल प्राप्त किया एशिया कप में और इसी अंदाज के लिए वो जाने भी जाते हैं. तो कप्तान ने भरोसा जताया उनके ऊपर सलमान आगा ने और 34वां ओवर कर रहे हैं अपने 4 ओवर की कोटे के अंदर. और बहुत कम दिखा गया है कि आप
पावर प्ले के अंदर अपना 30 ओवर कर रहे हैं, तो अच्छी गेंदबाजी की, केवल 10 रन दिए उन्होंने और आज अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी गेंदबाजों ने अपना होमवर्क पूरा किया। वो जानते हैं कि तेज गेंदों पर बड़े प्रहार किए थे अभिषेक शर्मा ने, स्लो रन डाले गेंद और उनको विकेट मिलता हुआ है। शायद अफरीदी ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है और अगर उनका इकॉनमी रेट देखा जाए पहले पावर प्ले के अंदर तो 26 विकेट लिए, 7.6 का उनका इकॉनमी है। आज इस मैच में अच्छी गेंद फिर एक 100 रन गेंद ड्राइव किया उसे सीधा फील्डर के हाथ में। संजू सैमसन जिनके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज भी बात। काफी मेहनत की है शाइन ने, उनका 30 ओवर 10 रन और इस उमस भरे गर्म मौसम में आप अच्छी गति और उछाल के साथ अगर गेंदबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहे हैं कि आप कमिटमेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। आखिरी बॉल इस ओवर की, बढ़िया ड्राइव, कॉपी बुक स्टाइल में, अलग अंदाज, परिणाम 4 रन। ओवर की होगी समाप्ति। बहुत ज्यादा नहीं है, संभल कर खेलना होगा, पार्टनरशिप बनानी होगी संजू सैमसन और तिलक वर्मा को। दोनों बल्लेबाजों ने एक शतक लगा जरूर लगा अब तक इस टूर्नामेंट में। बहुत ज्यादा बल्लेबाजी आई नहीं उसकी, मगर तिलक वर्मा बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, कितना लाजवाब स्ट्रोक खेला था। संजू सैमसन ने कवर बाउंड्री के बाद 4 रन पूरे कॉपी बुक स्ट्राइक में एक दो पर गेंद को काट दिया फील्डर के, 2 फील्डर के बीच में से। बढ़िया स्ट्रोक खेलने होंगे, थोड़ी सा अप्रोच को बदलना होगा। 3 ओवर अच्छे काफी कामयाब गेंदबाज, दोनों विकेट इन 100 रन पहली विकेट जो हुई थी उसमें 111 के बाद स्पीड पर गेंद स्पीड कम थी, 122। तिलक वर्मा, संजू सैमसन अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़ी बारी खेलना जानते हैं, भागीदारी बनानी होगी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। पाकिस्तानी प्लेयर्स का हौसला बुलंद है, इस वक्त तो 3 बोलने विकेट ले चुके हैं, मैच में वापसी की है। इस ओवर में अब तक 2 गेंदें हो चुकी हैं, प्रेशर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। चेंज ऑफ पेस के बल पर लगातार मुश्किलें पैदा की हैं फहीम ने। गैप ढूंढने में सफल रहे, तेज आउटफील्ड है, लेदर और लेग्स के बीच में अगर रेस होगी तो सफलता मिलेगी लेदर को, 4 रन मिले। आत्मविश्वास से बराबर स्ट्रोक, अच्छी टाइमिंग और प्लेसमेंट, इंतजार करने की जरूरत है, पेशेंस दिखाएंगे तो परफॉर्मेंस अपने आप हो जाएगी। और एक सामान्य से नियम है, अगर प्रेशर को कम करना है तो आप परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहे। एक बार फिर से चेंज ऑफ पेस किया जरूर था, लेकिन लाइन अच्छी नहीं थी। तिलक वर्मा ने बॉल को बहुत पहले देख लिया और जब भी आप बॉल को गैप में परफेक्ट टाइमिंग के साथ प्लेस करते हैं तो उसके पीछे भरपूर ताकत लगाने में सफल रहते हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक दिखाई देते हैं। 2 अच्छे शॉट्स दिखाई दिए हैं, पहले संजू ने लगाया था ऑफ साइड में, इस बार तिलक वर्मा। एक रन बेहद महत्वपूर्ण है, बढ़िया शॉट, लेग स्टंप के बॉल पिच हुई, यही ताकत है तिलक वर्मा की। अगर पैड लाइन पर इस प्रकार की गेंदें मिलेगी तो इन मौकों को हाथ से जाने नहीं देंगे। एक बढ़िया शॉट बाउंड्री 6 के रूप में। तिलक वर्मा शानदार बल्लेबाज है, जानते हैं कि किस तरह से खराब गेंद को पनिश करना है, जैसे कि मदद दिखाना, खुद धैर्य दिखाना होगा। मंजिल बहुत दूर नहीं है, रास्ता आपको खुद ढूंढना है, आत्मविश्वास आपके साथ होना चाहिए, धैर्य आपके साथ होना चाहिए, फिर आप मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। वही करते दिखाई दे रहे हैं 2 गेंदों पर। ये से चेंज ऑफ पेस था फहीम का, लेकिन अब पढ़ लिया है तो जिस तरीके से डिलीवरी स्ट्राइक में चेहरा बनाते हैं कि मैं बहुत तेज बॉल करने वाला हूं, लेकिन आखिरी समय में बॉल के ऊपर उंगलियां फेरते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। डिलीवरी स्ट्राइक में हाथ में बॉल को देखना बहुत जरूरी रहता है। और बॉल थोड़ा संभल करके खेलने की जरूरत है। और प्रवीण, कई बार ऐसा भी होता है कि अब तक इस एशिया कप में हमने देखा कि जब भी भारतीय ओपनर्स पारी की शुरुआत करने आए तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत औसत दिखाई दे रही थी, लेकिन जब आप लापरवाही बरतते हैं, आप लगातार विकेट गंवाते रहते हैं, तो जो एक औसत गेंदबाजी होती है वो घातक दिखाई देती है। सही कहा आपने मनोज, और जिस तरह का होमवर्क होकर के आए थे, बहुत ज्यादा स्पीड से गेंदें डाली थी और शाइन अफरीदी ने भी चेंज ऑफ पेस में काफी अच्छी गेंदबाजी की और फहीम अशरफ को गेंदबाजी कर रहे हैं। वो एक गेंद डालते 10 के बाद
और दूसरी गेंद आउट 130 तो 35 के बीच में, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी को थोड़ी सी परेशानी आ रही है और क्या करेंगे तो खेला, मगर उससे बढ़िया तरीके से खेल दिया और ओवर की समाप्त। 3 विकेट्स भले ही भारतीय टीम ने गवा दिए हैं, लेकिन इस फाइनल मैच में अभी भी संभावनाएं जीवित है। शर्त ये अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करने की। नवाज आए वो 10 विकेट बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और उनकी कोशिश ये होगी कि जो ऑफसाइड पर वक्त बनेंगे उस पर बॉल को पिच करें। 71 मैचेस के बाद विकेट्स उनके खाते में। स्वीप किया, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, बहुत बड़ा गैप मौजूद, 4 रन मिलेंगे, बढ़िया शॉट और इन्हीं शॉट्स की जरूरत है इस समय भारतीय टीम को। बड़ी खासियत है वर्मा की, जब वो स्वीप शॉट खेलते हैं उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है और क्या क्या खेलते हैं। देखिए अपने आप को बड़ी जाकर क्रिएट किया था, ऑप्शन के बाहर से गेम उसको स्वीप कर दिया विकेट बॉलर के पास 4 रन के लिए। और इस तरह के स्ट्रोक से आप खेलते हैं तो आपका विश्वास और बढ़ जाता है और खासतौर पर जो बल्लेबाज दबाव में है उनको भी एक उम्मीद के जाग जाती है कि बल्लेबाजी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप सही तरीके से खेलते रहेंगे, धैर्य से खेलते रहेंगे तो वैसा ही करते नजर आ रहे हैं वर्मा और संजू सैमसन। बॉल का इंतजार करें, थोड़ा संयम दिखाएं, समय की मानिए कि सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अगर अपनी इनिंग्स को बिल्ड करेंगे तो मौके रहेंगे रन्स बनाने के। अगर विकेट हाथ में रहेंगे तो अगर गेंद और रनों के बीच में बड़ा अंतर भी हो जाएगा, उस अंतर को कम किया जा सकता है कुछ बड़े ओवर्स लेकर के। गैप नहीं ढूंढ पाए, लेकिन तिलक वर्मा कुल मिलाकर के अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस श्रृंखला में तिलक वर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की है जब भी उन्हें मौके मिले और पिछले मैच में भी अच्छा लगाया था। और पूरी उम्मीद है कि हर कोई संकट से बाहर निकालने में कामयाब हो गए तिलक वर्मा और संजू सैमसन। एक शॉट ऑफ गेंद को फिर निकाला गैप में और इस बार फील्डर मौजूद है वहां पर। आपने हर ओवर में अगर आपको बाउंड्री मिल जाती पहले 2 विकेट पर तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट रन रेट बहुत ज्यादा नहीं है। और मेरा तो मानना है कि यहाँ से अगर ये दोनों बैटर्स लगभग 80 या 90 के आसपास पर टीम का टोटल ले जाने में सफल रहते तो प्रेशर पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय व्यतीत करें। संजू सैमसन जिन्होंने एक खूबसूरत ऑफ ड्राइव लगाया था, बाउंड्री राइडर्स ऑन साइड में देख सकते हैं। ऑफ साइड में बहुत बड़ा गैप मौजूद है और संजू सैमसन पूरी तरीके से सक्षम है कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स पर खेलने के लिए, लेकिन ये अच्छा पार्टनरशिप बनानी होगी और फिर जब बड़ी पार्टनरशिप बन जाएगी फिर आप बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। पाकिस्तानी फैंस मौजूद है स्टैंड्स में और उनके लिए खुशी के क्षण, क्योंकि टीम सफलता अर्जित करनी है पाकिस्तान के बॉलर्स ने। हैरिस रॉफ अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन चेंज ऑफ पेस के ऊपर ध्यान लगाना बेहद जरूरी है। लगभग 145 और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और पिछली बॉल 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी रॉफ ने। लेकिन एकाएक जब चेंज ऑफ पेस करेंगे उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक भारतीय टीम ने जो 3 विकेट्स गंवाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्लो रन डिलीवरी के ऊपर खोए हैं। पहले अभिषेक शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, तीनों ही बैटर्स चेंज ऑफ पेस को ठीक से पढ़ नहीं पाए थे। कंधे का उपयोग जरूर किया, बढ़िया पोजीशन, टाइमिंग, 4 रन, इसी अंदाज की जरूरत रहेगी। और जब अपने आप को आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, फिर आपको खराब गेंद मिली और आपने उसको बाउंड्री में कन्वर्ट किया, ये संजू सैमसन की खासियत है। अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं और बढ़िया स्ट्रोक खेला उन्होंने। शॉट ऑफ गेंद थी उसको अपने आप को बड़े अच्छे पोजीशन दिया, टैक में खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए। और इस तरह के स्ट्रोक से बात खेलते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर जो भागीदारी बढ़ रही है वो धीरे धीरे तेजी की ओर से आगे बढ़ सकती है। संजू सैमसन के कोच द्रोणाचार्यवाड़ी संजय भारद्वाज से मेरी बातचीत होती रहती है। उन्होंने बताया कि जब भी उनके ट्रेनिंग भारतीय टीम की तरफ से खेल रहे होते हैं तो खासतौर से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके ट्रेनिंग अच्छा प्रदर्शन करे। संजू सैमसन उन्हीं ट्रेनिंग्स में से एक है। संजय भारद्वाज और गौतम गंभीर ने भी संजय भारद्वाज से क्रिकेट के बेसिक्स सीखे हैं और उनके अंदर में
काफी वर्षों तक क्रिकेट का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रमोद चंद, जोगिंदर शर्मा, अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ी। पारी का 8वां ओवर इस समय प्रगति पर 49 पर 3। अभिषेक शर्मा गिल कुछ खास नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव भी सस्ते में आउट हो गए। लेकिन ये जो एक पार्टनरशिप बनी है तिलक और सैमसन के बीच में, काफी हद तक राहत की सांस कह सकते हैं पहुंचाई है बाकी फैंस को। तिलक वर्मा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक कहा। किसी भी गुरु के लिए अगर उनका शिष्य मैदान पर और एक क्षणों में फाइनल मैच के अंदर अच्छा प्रदर्शन करता है तो गुरु का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। और जो गुरु ने गुरु दिए होते हैं अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली वो गुरु के लिए बहुत ही अभिमानी दिन होगा और अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे। और यही काम करते नजर आ रहे हैं संजू सैमसन और तिलक वर्मा। भागीदारी मृत्यु समिति हुई, अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। खेला ऑन साइड पर गैप नहीं हुई। 8 ओवर में 7 विकेट ये स्पिन और दूसरे से फास्ट बॉलिंग के साथ अटैक कर रहे हैं। अब्रार आए हैं 23 मैचेस 28 विकेट 4 विकेट 9 रन देकर बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस उनका। और अगर औसत की बात करें तो 7 से नीचे 6.56 लगातार अपनी उपयोगिता साबित की अब्रार ने भी। सिंगल स्पिनर है, रिस्ट का भी अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। लगातार सोचने के लिए विवश किया है उन्होंने बैटर्स को और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ने में सफल हुए अब्रार। टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छी गेंदबाजी की अब्रार रहमान ने 2 श्रृंखलाएं जिताई पाकिस्तान को और अब T20 में भी अपने जोर दिखाते हुए। इकॉनमी बहुत अच्छे 207 की किसी स्पिनर इकॉनमी के हिसाब से कम है तो काफी अच्छे स्पिनर माने जाते हैं। ये शॉट उठा कर खेला गया फील्डर उसके नीचे, लेकिन फील्डर के बिल्कुल हाथ में आ गई थी और हाथ से छटक गई। एक जीवनदान मिलता हुआ कहीं ना कहीं संजू सैमसन को थोड़ी सी अप्रोच बदलनी होगी तो अब कैजुअल नहीं होना होगा। ये ध्यान रखना होगा इस बात की। ये पार्टनरशिप अच्छी हो रही है और ये बहुत बड़ा जीवनदान मिला है संजू सैमसन। क्या ये मैच गया पाकिस्तान के हाथ से जिस तरीके से कैच छिटका है? बहुत ही आसान मौका था। संजू सैमसन उम्मीद कर रहे थे कि बहुत तेज गति के साथ बॉल आएगी लेकिन स्ट्रोक थोड़ा सा पहले खेल गए जिससे से ताकत नहीं लग पाई। बॉल हाथों में आई, छिटक गई। कुछ नहीं होंगे जिस तरीके से पिछला शॉट खेला था संजू सैमसन ने। अब एक मौका मिला है, उसको भुनाएं और समय बिताएं, कम से कम गलती करें क्योंकि यहां पर आज मौका है नायक नहीं महानायक बनने का, हीरो नहीं सुपर हीरो बनने का, क्योंकि ये एशिया कप का फाइनल मैच है। ये एक बार फिर से देखिए हाथों में आ गई थी बॉल और इस लेवल पर इस स्तर पर ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं चाहिए। हम कह रहे थे कि बल्लेबाजी बड़ी कैजुअल अप्रोच थी। इस वक्त जो कैच अटेम्प्ट किया था उसका अप्रोच काफी कैजुअल थी। अब संजू सैमसन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनी बैटिंग अप्रोच में थोड़ा सा बदलाव लाए और बिल्कुल धैर्य से खेले और अपने सीधे पार्टनर तिलक वर्मा का साथ दें और अच्छी बल्लेबाजी करें। जरूरत है भारत को एक अच्छी भागीदारी की और इस मैच में और इस एशिया कप के फाइनल को जीतना है। कप्तान अपने गेंदबाज से बात करते हुए अब्रार अहमद अच्छा ओवर करके जो है केवल 5 सिंगल्स आए हैं। थोड़ी सी निराशा भारतीय कैंप में। अच्छी गेंद पूरा सम्मान देते हुए तिलक वर्मा की दूसरी पारी के दौरान ओस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कई बार बॉल गीली हो गई थी लेकिन आज अभी तक ओस दिखाई नहीं दिए मैदान में और सूखी बॉल को ग्रिप करना काफी आसान रहता है। वैसे भी पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है उसका मुख्य आधार स्पिनर्स हैं। एक और परिवर्तन गेंदबाजी में अयूब आए हैं, इनके पास भी एक अच्छी कला है। उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बॉल को स्पिन भी कराते हैं और तिलक वर्मा के सामने मुश्किलें भी पैदा की हैं शुरुआती दोनों मैचेस में। बीच में दूसरा और लेग कटर का अच्छा समावेश करते हैं। ऑन साइड और ऑफ साइड में आपने अपनी पोजीशन देखी, ये अच्छी तकनीक है, ये सही रणनीति है। थोड़ा संयम दिखाएं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है गेंद और रनों के बीच में। जरूरत इस बात की है कि आप लगातार रनों के पहिए को चलाते रहें। सही मयूर बड़ी अच्छी गेंदबाजी की अब तक इस टूर्नामेंट में और एक गेंद मुझे याद आती है जो उन्होंने शुभमन गिल का विकेट लिया था और स्टंप आउट कराया था। बहुत ही शानदार गेंदबाजी थी वो और अच्छे गेंदबाज है। और जैसा कि मनोज ने बताया कि न्यू का इस्तेमाल करते हैं, टॉप स्पिन डाल देते हैं, कभी लेग स्पिन डाल देते हैं, कभी सीधा रहता है, कब टर्न होता है उसका। दोनों ही बल्लेबाज समझ से खेलना होगा।
स्पिनर्स हैं यहाँ पर काफी इफेक्टिव साबित होते हुए 63 रन गेंदों पर 90 रन बनाने, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट 8.57 था और ये विद इन रीच है और ये बड़ा ओवर इस अंतर को कम कर सकता है और दोनों बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा। डिसिप्लिन बल्लेबाजी की जरूरत है जो बिल्कुल करते हुए नजर आ रहा है। अच्छे बल्लेबाज भी हैं मगर इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए, गेंदबाजी अच्छी जरूर की अच्छी ऑलराउंडर पूरी कर रहा है ऑफ साइड के ऊपर एक रन नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को और ये अप्रोच रखनी होगी, स्ट्राइक को ब्रेक करना होगा। 6 सिंगल्स भी आएंगे तो आप रिक्वायर्ड रन रेट के बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। 10वें ओवर की आखिरी गेंद, 38 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच में। 61 गेंदों पर 89 रनों की आवश्यकता। इस बॉल की बात कर रहे थे। 8.90 की औसत तिलक वर्मा संजू सैमसन की जोड़ी बीच मैदान पर अपनी भागीदारी हो चुकी है। अच्छी गेंद की अंदर की तरफ आ गई मगर बहुत ही अच्छी तरीके से खेला उसको तिलक वर्मा ने। इस तरह की अप्रोच से बल्लेबाजी करनी होगी संजू सैमसन और तिलक वर्मा को। 15 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाज को धैर्य का परिचय देना होगा, अनुशासित बल्लेबाजी करनी होगी और स्कोर को अगर 15 ओवर तक 90 के आसपास पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो भारत की टीम के लिए काफी आसान होगा अंतिम 5 ओवर में। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है भारतीय टीम को अगर एशिया कप वर्ष 2025 को जीतना है, इसलिए जम करके बल्लेबाजी करें, पूरी तरीके से फोकस और एकाग्रता बनाए रखें, यही समय की मांग है। ये वो क्षण थे ड्यूरिंग ड्रिंक्स ब्रेक, गौतम गंभीर आए, तिलक वर्मा से बातचीत की, अपने सैमसन को भी यही कहा होगा कि संयम बना के रखना है, आंखें खुली और कान बंद, क्योंकि स्लैजिंग भी होती कई बार। बढ़िया शॉट, गैप ढूंढने में सफल रहे, 6 रन मिलेंगे। ये पैरेलल बाउंड्री 6 था तिलक वर्मा के बाद से और ड्रिंक से बाद जो एनर्जी आई है उसका असर तिलक वर्मा ने दिखा दिया इस जोरदार शॉट के माध्यम से। आपको खराब गेंद जब मिले आप उसका तेज प्रहार कीजिए और बढ़िया स्ट्रोक किया वहां पर तिलक वर्मा ने 6 रन किए, उनके हाथ में थी और करीब 5 के बाहर बढ़िया स्ट्रोक जो वर्मा जानते कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उसको फेस। और उसके बाद सिंगल और यही अप्रोच होनी चाहिए। आपके 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में, आपको 3 गेंदों पर 9 रन मिल चुके हैं तो आप बाकी 3 गेंदों में जितने भी रन आएंगे वो बोनस होंगे। और पार्क और बॉलर की आंखों में डार्क अंधेरा जब भी ऐसे शॉट लगते हैं तो कोई भी बॉलर इस प्रकार के शॉट देखना नहीं चाहेगा। और ये वो आंखें देखिए क्या गुस्सा दिखाया उन्होंने। संजू सैमसन को यहां पर 1 रन लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक बाउंड्री 6 आ चुकी है। अच्छा काम किया, इसी सूझबूझ की जरूरत है। और देखिए 10 रन आ चुके हैं अब तक स्कोर में, अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं, अब ये 1 गेंद बाकी है और ये जो 900 पर रन आए हैं वो बोनस के रूप में आए हैं। और संजू सैमसन और ये देखिए किस तरह से तिलक वर्मा स्वीप शॉट खेलते हैं, बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं वो और जब भी उनके हाथ में गेंद आती है वो पार के भारी पहुंचाते हैं। लाजवाब बल्लेबाज हैं, अप्रोच बहुत अच्छी है उनकी, अनुशासित बल्लेबाजी करते हैं जब हमने देखा है और स्पिन के खिलाफ काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। स्ट्राइक रेट 262 का रहता है स्वीप शॉट के लिए और हल्के साथ गेंद को खेल दिया लॉन्ग लेग की तरफ। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों के। ओवर की समाप्ति 11 के बाद 3 विकेट नुकसान पर पाकिस्तान चुनाव। Career with Tilak in his first 16 innings, average of 33. Next 13, 74. The player in the spotlight. And she got a promotion up the order, and then when you get a promotion up the order, you get more overs to bat and you score more. But it's just consistency that's admirable. Had a great atmosphere against the match India-Sri Lanka. A lot of people turned out to be a super game with a super over as well. But tonight,
This is unmatched what you're watching, and they're so involved in the game with cheering the ball as he runs in. A dot ball is being cheered. Good shot, but he couldn't find the gap to make the crease in time. 2 dot balls. Good bit of fielding there. 2 dot balls. Now what is Samson going to do? Take a bit of a chance or what? Yeah. If you know Sanju Samson, he might be getting a little restless. Tilak had maybe gone down and said to him, no worries. Well, you can see already got some the atmosphere here. See with the game as well. It's another dot ball. Now you've got to worry about Sanju Samson. Yes, he's walking away, trying to take some deep breaths. 20 overs left. Strike for the big one. And enough back on that one to take it all the way. Just what he needed. This release of pressure. A great shot, really. Yes, I think what Time did was he thought that he would come down the pitch and therefore he pitched it short, and that's exactly what Samson was waiting for. And hit it straight over long on. That's not an easy shot to play. That's a lovely shot from Sanju Samson, making up for those earlier 3 dot balls. Just amazing trust in the big game, Sanju Samson. So much to like about him. Not an easy shot to play, straight down the pitch. And then this is what they've done, both of them, after 70 of 47. Required rate still under 9. It's been in that situation for a little while now. Pakistan will have a couple of tight overs just to push it up to around the 10, close to 11 mark, put a little bit of pressure on the middle to lower order. Waqar. Yeah, this game is on for sure. Pakistan have to pick up a wicket. They had the opportunity to get Samson out. He was dropped at 12. The score was 42. Big opportunity came in their way. And it wasn't a hard catch. 9 and over this surface, I feel, with 7 wickets in hand, it should be a problem for India. Might be now, top edge from Sanju Samson. Abrar has got one. Partnership broken. Excellent bowling. A little bit slow in pace. Allowed or gave the ball a chance to spin or land it on the seam, and look how the ball spun. Comfortable catch, Shahzad Ibrahim. Farhan, I beg your pardon. Yeah, I've heard a lot of good things about Ringo. Can he handle the pressure of the final? There's a big pressure, so but now they have to keep things really tight like that. Abrar bowling his 3rd over, 1 for 17. Young Shivam Dube has just come onto the crease under immense pressure. Good strike rate. But on this pitch, it might be a little difficult to keep that up. Good fielding, good pressure by Pakistan. Well, that's exactly what they need now with the new batter at the crease. Look at that run rate. This is the reason he's there. You're right. It was slower. It was slightly wider and it turned. It's just 81, down from 94 first ball, down to 81 the second ball. The play's underway, but don't mind this from Abrar. If you're just looking to get out of the over, it's been a brilliant over.
You fire one in at the pad, so you can have your one, because all of a sudden the run rate's gone from 8.7 to 9.6. Even this ball here, if you can get out of it with a single, it's a good result. Yeah, it's about showing the responsibility of getting out of the over. Yeah, wonderful. Excellent over comes from an Finding a little bit of turn. Left-handed batters, he bowls 92% of his deliveries are standard off break. For the right-handers, 82% of a carom ball. And the wicket of Sanju Samson was really clever from Abrar. It kept him nice and tight in the line with the stumps, predominantly. Look at where he's bowling, off stump. Middle, leg stump on that occasion. Middle stump there. That one there, middle and leg. And then just a little bit wider. And then this one really slow and really wide. It was clever bowling. Yeah, he's a match winner. Abrar. Required run rate over 10 now. He's got 1 over left. Abrar, Sam Ayub's got 1 more after this. Harisov hardly being used. Good bowling. The slower you bowl, the ball spins a bit more. There's no real dew. Maybe the ball just getting a little greasy, a little damp, but it's not really causing any issue for the bowlers. No towels out at all yet, so that's a good sign. And for a fair contest all the way through. With the left-handers, the matchups are such a big thing nowadays. I don't always go along with them, but you feel like they'll just keep Nawaz out of the attack at the moment with the left-handers at the crease. So same overs, filling in those overs and doing a great job of it. It won't go for 4. Oh, out! No, I don't think so. I don't think so. We'll go to the third umpire. The umpire director, we have umpire for run out at the striker's end. Give me the side on angle, please. Now he made his position. Now he made it ground. Better made it ground. Can I have the opposite side also, please? Opposite side, please. Okay. Mobile please. Keep it rolling through. Yes, satisfied. Batsman made his ground before wicket is broken. I have a decision to the giant screen. Well, it's going to be not out. But I just want to take a look. At this one. There's back up. There's one over early on. Hit hard. Place on and 4 for Shivam Dube. Very good start of the over for India. Dube just spanked that one through cover. He had a little bit of room. He's a tall man. He stood very tall. And he made sure that he get in the middle of the bat. Look at those wrists coming into play. Only had 22 meters to spear that gap. Hit so hard. That will ease some pressure off Indian batters.
Yeah, with that field set, you say it's a poor start from Haris Rauf. Mid-off inside the circle, cover inside the circle. It was just short and wide. Just go back and take a look at this. It's just not sure. Have a look from this angle. See the end on it with the little edge. It was brilliant work from Hassan Ali. Yeah, that's poor. I think that's really just ripped the stumps out of the ground. It's just going to rip the stumps out of the ground. It was just, he's missed the first stump and actually flipped the bail off on the opposite side. He's trying to be too cute. Yeah, he was clearly out of crease when he attempted for the first time. Another boundary, beautiful shot. Slow delivery, but 2-4. Excellent shot. Change of plan from the Indian batters. They're going after Haris Rauf. I mean, it's easy to say after the fact, but you have to keep pushing that run rate up and up and up, put pressure on. So I just think that I'd have finished off with Abrar and Seymour, because they were bowling so well. You take those two through to the 16th over, and all of a sudden that run rate could have been 13-14. Nine off 3. Great start to the over for India. Well, Pakistan's best chance is with the spinners. And they still have overs remaining. Abrar's got one for Saim Ayub, and even Nawaz has bowled only 1 over. Yes, Haris Rauf will be key, maybe right at the end, in the last 3 overs, maybe 4 overs. But at this stage, you're right, really. The spinners were doing a good job. Why have you changed them? Easing that into the onside for 1. Few opportunities have come Pakistan's way. There was a good drop catch, and of course a couple of run-outs. Didn't really cost much, that missed run-out of Shubman Gill, but this might be costly, this run-out, this missed run-out by Mohammad Haris. Swung away and all the way for 6. Terrific over from India's point of view. 17 coming from it, the 100 up with 5 to go. They need 4. जब भी नुकसान हो तो रमजान की नई सफलता मिली थी और पिछला बड़ा अच्छा क्रिकेट भारत के लिए और एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला है वहां पर शिवम दुबे ने ऊंचाई भी, दूरी भी और छक्के की मंजूरी भी। ये है वो शॉट जिसके लिए सुबह दुबे जाने जाते हैं। 106 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर रन रेट बहुत कम हो गया है। और मनोज, आपका कमेटी में स्वागत है, क्योंकि आप चाहते थे कि 15 ओवर का 100 रन बनाए, भारत ने 100 रन बनाए। अब 5 ओवरों में 47 रन चाहिए थे, अब 29 गेंदों में 41 और रन रेट 8.48। दूसरे स्पेल में आए अबरार और एक जोरदार बाउंड्री किक से स्वागत किया शिवम दुबे ने। काफी देर तक बॉल हवा में रही, लेकिन स्ट्रोक के पीछे भरपूर ताकत, जिसमें से दूरी भी, ऊंचाई भी और 6 रन। 16 के व्यक्तिगत योग का बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसे कहते हैं प्रेशर। इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये भी अपने आप में एक कला है। बिल्कुल ठीक है आपने, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। एक ही पहली गेंद में जब बाउंड्री स्ट्रोक आ जाता है तो बल्लेबाज के आत्म शॉट बढ़ता है और गेंदबाज तनाव में आ जाता है। और देखा पहली गेंद पे बड़े स्ट्रोक लगाया था शिवम दुबे ने और उसके साथ दूसरी गेंद वाइड बॉल, यानी एक गेंद के साथ रन। और फिर टॉप एज रन है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती करके विकेट कीपर, अगर वो चाहते तो ये कैच के लिए जा सकते थे, मगर गलती की
और एक रन अर्जित होता हुआ शिवम दुबे को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। और वहां पर फिर तिलक वर्मा ने कहा कि आप थोड़ा सा गेम में बने रहिए। कहने का शिवम दुबे ने खराब शो खेला था, उसको सोचते हुए आगे बढ़ गए थे, थोड़ा 2 रन हो सकते थे। तिलक वर्मा को थोड़ा सा संयम दिखाना होगा। पिक्चर अभी बाकी है, फिनिशिंग अभी शेष है। 28 गेंदे 39 रन। काफी देर बाद जो रन औसत है वो 8.36 दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर पूर्व 10 के आसपास औसत था। 16 से 20 ओवर्स के बीच में बैटर्स के पास मौका रहता है जोरदार शॉट्स खेलने का। पिछली 8 गेंदों पर 25 रन बने हैं, 2 बाउंड्री 6 और 2 बाउंड्री शामिल हैं उनमें। यह है मानसिक मजबूती, यह है सूझबूझ, यह है संयम, समझदारी तिलक वर्मा की। ये जोरदार शॉट था, इंतजार किया, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, चेंज ऑफ पेस जरूर किया था हैरिस रॉफ ने, लेकिन गेंद और बैट के बीच में जब संपर्क स्थापित हुआ तो शॉट के ऊपर 6 रनों की बॉल लग चुकी थी। कोच भी नाराज थे हैरिस रॉफ की इस लाइन से। और हैरिस रॉफ हैरान हो रहे हैं कि ये स्ट्रोक कैसे लग गया। आपने खराब गेंद की, उन्होंने अच्छा स्ट्रोक खेला और लग गया स्ट्रोक। और अब 27 गेंदों पर 38 रन चाहिए। बहुत ही समझदारी की बल्लेबाजी की तिलक वर्मा ने, और पूरा साथ दिया शिवम दुबे ने। घबराइए नहीं, पहली बाउंड्री पहली गेंद पे आप 6 बना चुके हैं। आप डॉट बॉल भी आती है तो आप कवर अप कर सकते हैं। 8.77 का रिक्वायर्ड रन रेट है। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी भागीदारी हो चुकी है और 109 रन भारत के 4 विकेट नुकसान इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं। भारत को चाहिए अभी भी 2 गेंदों पर कम से कम भी अगर ज्यादा से रन ले पाए के हाथों से खेला उसे ऑन साइड पर 1 रन बल्लेबाज ने चुरा लिया। अगर दूसरा रन भी तेजी से लेते तो शायद हो सकता था, मगर शिवम दुबे उस तेज तरह के बल्लेबाज नहीं है, फिर उतने अच्छे नहीं है। हालांकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है 8.88 तक है। थोड़ी सी परेशानी वहां पर पाकिस्तानी फैंस के चेहरों पर नजर आती है। 25 गेंदे 37 रन। दबाव तनाव खिलाड़ियों के ऊपर भी, फैंस के ऊपर भी। और जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती है तो रोचक रोमांचक संघर्ष दिखाई देता है। हैरिस रॉफ मौजूद है। 1 रन मिलेगा। ओवर की होगी समाप्ति 111 पर 4। तिलक वर्मा ने खेल के मैदान से एक्शन के माध्यम से दिया। चलिए शाइन आए अंतिम ओवर लेकर के। हेडलाइन पर बॉल पेश हुई, बहुत बड़ा गैप मौजूद है, केवल 1 रन। अब यहां से शिवम दुबे को एक बड़ा शॉट देखना चाहिए। अगर उनके हिटिंग जोन में बॉल आएगी उस पर जोरदार प्रहार करें, गेंद और रनों के बीच का जो अंतर है उसे कम करें। शिवम दुबे को अपना रोल मालूम है, क्या किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, अपने सीनियर पार्टनर के साथ देना है। 51 रन में 3 चौके 3 छक्के लगाए, शानदार पारी खेली तिलक वर्मा ने और एक किस्मत बल्लेबाजी की है। और जरूरत पड़ी अक्रमण भी खेले हैं और जहां जरूरत पड़ी है बड़े संयम से बल्लेबाजी, यही है तिलक वर्मा की खासियत। और एक हवा में खेला गया गेंद अगर विकेट पर काफी दूर रह गए, मगर 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज। चेंज ऑफ पेस को देखना बहुत जरूरी है। शाइन ने अच्छा नियंत्रण दिखाया आज इस स्पेल में। आखिरी समय में बॉल के ऊपर उंगलियां फेरी थी। चतुराई के साथ गेंद की गति और दिशा में तब्दीली करने में सफल रहे थे। बैटर सोच रहे थे कि शायद बॉल इस गति के साथ आएगी, लेकिन बॉल थोड़ा सा रुकी, उसके बाद बैट तक पहुंची थी। अच्छा यॉर्कर, एक बॉल का महत्व है। डॉट बॉल कम से कम खेलनी है। इस सोच के साथ आप लगातार कोशिश करें गेंद और बैट के बीच में संपर्क स्थापित करने की। शाइन अफरीदी ने इस मैच में काफी बढ़िया गेंदबाजी की है। आज पुराने लहर में नजर आ रहे हैं शाइन अफरीदी। 16 रन खर्च किए हैं 3.3 ओवर में। 195 रन बनाए, मैच का औसत है। लाजवाब बल्लेबाजी की है। अभी भारत को जरूरत है कि इस 34 रन में उनका योगदान ज्यादा से ज्यादा हो। 51 रन बनाकर खेल रहे हैं 45 गेंदों पर। भारत को जीत के लिए 22 गेंदों पर 34 रन चाहिए। खेलना चाह रहे थे, ये बात किया मैंने कहीं 2 रन जरूर मिलेंगे। 30 रन के लिए बल्लेबाज से जाना पड़ेगा। बड़ा अहमद भाग रहे हैं जैसा ही मायूब थे, 2 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। अभी भारत को जरूरत है कम से कम ओवर बहुत बड़ा बनाने की। 2 गेंदें शेष हैं। मनोज अगर 2 गेंदों में बाउंड्री आती है तो भारत एक पार आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बॉल पर एक बड़ा शॉट आएगा।
तिलक वर्मा ने अब ठान लिया है कि अगर हिटिंग जोन में बॉल मिलेगी उसको जोरदार शॉट खेलेंगे। ये वो पिछली बॉल थी, चेंज ऑफ पेस एक बार फिर से बॉल पहुंची थी फैनले क्षेत्र में। अब्राहम ने डाइव करके बॉल की गति को कम कर दिया। अगर हाथ नहीं लगता तो निश्चित रूप से 4 रन मिल सकते थे। जिस तरीके से गेंद और बैट के बीच में संपर्क स्थापित हुआ था, 20 गेंदों के ऊपर 32 रनों की आवश्यकता है। इन 2 गेंदों के ऊपर एक बड़ा शॉट चाहिए भारतीय टीम को। तिलक वर्मा ने अनुशासन के साथ बल्लेबाजी की है, शानदार प्रदर्शन उनका। और फिर से यॉर्कर अंतिम समय में बैकलेग को छोटा किया और गेंद और बैट के बीच में संपर्क स्थापित किया। अच्छी तकनीक तिलक वर्मा के द्वारा। 19 गेंदें 31 रन। अब तक अच्छा ओवर घटित हुआ है पाकिस्तान के लिए, केवल 5 रन आए अंतिम गेंद में। क्या शिवम दुबे बड़ा स्कोर प्रहार करके इस ओवर को अच्छा बना सकते हैं? और शिवम दुबे में वो काबिलियत है कि वो बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं। भारतीय कोच थोड़े से तनाव में नजर आते हुए, कभी भी जीत का लक्ष्य काफी दूर है। 31 रन बनाने भारत को 19 गेंदों पर। बार बार कोच अपने अतिरिक्त खिलाड़ी को संदेशा भिजवाते हुए पाकिस्तान टीम के कप्तान के फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों में खेल दिया उसे। बड़े स्कोर नहीं करवा पाए। ओवर की समाप्ति 17 के बाद 117, 4 विकेट नुकसान पर। पाकिस्तान के कप्तान आगा के चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। 100 आए हैं, 2 ओवर में 24 रन दिए हैं। रनअप में गड़बड़ी हुई, लेकिन यहां पर तिलक और शिवम दुबे ने अच्छा काम किया है। सही गेंद का चयन करते हुए जो एक तनाव बना था भारतीय टीम के ऊपर, उस तनाव को तकनीक के बल पर कम करने में काफी हद तक सफलता मिली है। एक अच्छी साझेदारी तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच में। चेंज ऑफ पेस, लेकिन अच्छा कनेक्शन, आसानी के साथ 1 रन। अब स्ट्राइक रोटेट के जरिए खराब गेंद खेले उसे बाउंड्री पर कन्वर्ट करिए। यही अब मांग है, यही अब जरूरत है भारत को। तिलक वर्मा और शिवम दुबे दोनों बल्लेबाज के पास एक क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने। खासकर तिलक वर्मा ने बहुत बड़े स्ट्रोक्स खेले हैं और शिवम दुबे भी पीछे नहीं रहते। ये भारतीय टीम तो अब तनाव से थोड़ा मुक्त है, क्योंकि बहुत ज्यादा रन नहीं बनाने, 29 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने की 17 गेंदों पर। फैंस अभी भी थोड़े से प्रेशर में नजर आते हुए। तिलक वर्मा चाहेंगे कि इस ओवर को कैश किया जाए, एक बड़ा ओवर बनाया जाए इस ओवर को। हैरिस रॉफ में बॉलर, वाइड बॉल, मिस्टर एक्स्ट्रास के खाते में 1 और रन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तिलक वर्मा अंपायर की आंखों में देख रहे हो, वो हाथ से इशारा भी किया कि 10 फीट है, उसके बाहर बॉल अगर पिच होती है। अभी भी बातचीत चल रही है, शिवम दुबे अंपायर से बात कर रहे हैं। ये फ्रेम देखिए, बहुत ही नजदीकी मामला है। टीवी अंपायर को अब ये तय करना है कि जो 10 फीट की विड्थ होती है पिच की, उसके बाहर बॉल है या अंदर। टीवी अंपायर के इशारे का इंतजार है कि नो बॉल है या वाइड बॉल। फिर देखेंगे अंपायर। तिलक वर्मा अपने स्थान पर ही खड़े थे, जहां सफल नहीं होते। इसमें एक एडवांटेज ये रहती है कि अगर अंपायर नो बॉल घोषित करेंगे तो फ्री हिट आएगी। इसी वजह से टीवी अंपायर लगातार देखते हैं और यहां पर निर्णय आया वाइड के रूप में। तकनीक का यही फायदा है। कुल मिलाकर के 1 रन मिला और एक अतिरिक्त बॉल भी। फ्री हिट नहीं रहेगी। 17 गेंदें 28 रन। एक गेंद पे 2 रन आ गया। ये काफी बाहर की गेंद खेला उसे पॉइंट की तरफ। 1 रन जरूर अर्जित होगा। और अब वो सबसे काफी दूर गेंद फेंक रहे हैं, बल्लेबाजों के से थोड़ा दूर फेंक रहे हैं। ये ध्यान रखना होगा बल्लेबाजों को। गेंद अब थोड़ा सा ढीला हो रहा है, क्योंकि काफी ड्यू है जो मैदान पर है। शिवम दुबे को एक बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा। बड़ा स्ट्रोक खेलने से थोड़ा सा प्रेशर और कम हो जाएगा। भारतीय टीम के लिए जो फायदे की बात यह कि रिंकू सिंह और अख्तर पटेल दोनों ही जोरदार शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। और रिंकू सिंह ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, आप समझ सकते हैं। डीप बैकअप पॉइंट, 20 पॉइंट। ये तय है कि ऑस्टन के बाहर डेलिब्रेटली बॉल को
पिच कराया जाएगा ताकि एक उड़ता हुआ कट खेले बेटर और संभावना बने। शिवम दुबे ने ड्राइव किया है के साथ 1 रन, धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़े। और ये जो अंतर देख रहे हैं 26 और 15 का, इसको कम करना बेहद जरूरी है, तभी पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर और दबाव आएगा। ठीक कहा आपने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 3 गेंदबाजी की अभी तक रॉक ने, हालांकि तो वही बॉल डाल दी। आपने फील्ड में देखा था, एक बैकवर्ड पॉइंट पे बाउंड्री राइडर है, एक कवर पॉइंट के ऊपर बाउंड्री राइडर है। यहाँ पर ध्यान रखा होगा बल्लेबाजों को, अगर स्ट्रोक खेलना हो तो एक्स्ट्रा पर ऊपर से खेलना होगा। एक लॉन्ग ऑफ पर भी खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर है, डीप विकेट पर खिलाड़ी है, 5 बाउंड्री राइडर्स हैं और इस चीज को समझ कर खेलना होगा बल्लेबाजों को। और ये बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया वहां पर, एक चतुराई से खेला स्ट्रोक है, 2 रन जरूर मिलेंगे वहां बल्लेबाजों को। और स्टंप की बाहर की गेंद को निकाल दिया था उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ और 2 रन अर्जित होते हुए 14 और 24, 14 बॉलें 24 रन। और कई बार अमूमन हमने देखा है कि निर्णायक मौकों पर भाग्य का भी सहारा चाहिए होता है, और अगर आप भाग्य आपके साथ है तो जीत का मार्ग और आसान हो जाता है। पिछली 15 गेंदों के ऊपर 17 रन बने हैं। बड़े स्ट्रोक्स के ऊपर अंकुश लगाया पाकिस्तान के बॉलर्स ने। फिलहाल जो इक्वेशन है, बची हुई 14 गेंदों के ऊपर 24 रन, 10 का अंतर है। 2 बड़े शॉट चाहिए, उसके बाद पर बॉल गेम आ जाएगा। फिर से ऑन साइड में खेला डेलिब्रेटली, तिलक वर्मा ऑन साइड में संभावनाओं की तलाश में है, क्योंकि फाइन लेग और स्क्वायर लेग के जो फील्डर है 30 गज के दायरे में मौजूद है। अगर उस गैप में से बॉल को खेला तो निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे। बल्लेबाज थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश करते हुए तिलक वर्मा, जानते हैं कि ऑफ साइड की फील्ड उन्होंने पैक करके रखी हुई है और इसलिए वो ऑन साइड पे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। ऑप्शन के बाहर गेंदें जा रही हैं। 13 गेंदों पर 23 रन चाहिए। अंतिम गेंद पे बड़ा प्रहार चाहिए शिवम दुबे द्वारा। 17 गेंदें 22 रन बनाकर खेल रहे हैं हमारी स्टॉप की 30 ओवर की अंतिम गेंद। और फुल टॉप बनाया, गेंद को उठा दिया वहां पर लॉन्ग ऑफ मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए जिस बाउंड्री की तलाश थी वो मिलता हुआ। दुबे के बैट से फैंस खड़े हो गए, अभिनंदन किया इस जोरदार बाउंड्री 6 का। मौके पर बाउंड्री 6 लगाया शिवम दुबे ने। नाराज दिखाई दे रहे हैं हैरिस रॉफ, क्योंकि बॉल गीली है, गीली बॉल को ग्रिप करना उतना आसान रहता नहीं है। अब यहां से 12 गेंदें 17 रन, पहली बार जीत की सुगंध महसूस हो रही है इस मैच में। उतार चढ़ाव देखा है हमने कई बार पाकिस्तान के पक्ष में और कई बार भारत के पक्ष में, लेकिन अब यहां पे स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आवश्यकता है अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करने की। तिलक वर्मा 48 गेंदें 58 रन, करीब आए हैं। अपने दूसरे स्पेल में 3 ओवर्स 22 रन 2 सफलता है। बहुत ही चतुराई के साथ चेंज ऑफ पेस किया था और शुरुआती ओवर्स में मुश्किलें पैदा की थी बाकी बैटर्स के सामने। 36 गेंदों के ऊपर 53 रनों की एक यादगार साझेदारी। जब भी एशिया कप 2025 की बात करेंगे तो हम तिलक वर्मा के प्रयास और शिवम दुबे का साथ, इन दोनों को भुला नहीं पाएंगे। क्या शानदार बल्लेबाजी दिखाई दी, क्या शानदार प्रयास रहा। शिवम दुबे बहुत ही फोकस दिखाई दे रहे हैं, खराब बॉल का इंतजार कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि संकट की स्थिति से भारतीय टीम बाहर आ चुकी है। गर्मी और उमस भरे मौसम में बॉलर्स को फिटनेस मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और फहीम भी हैमस्ट्रिंग में का दर्द महसूस कर रहे हैं। एक और फ्रेम देखिए, रनअप पे पूरी पावर के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन जब डिलीवरी साइड में उनका बैक फुट लैंड ही नहीं हो पाया दर्द की वजह से, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। अभी भी खेल रुका हुआ है। 12 गेंदों पर 17 रन चाहिए। 53 रन की भागीदारी दोनों बल्लेबाजों की। शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की, बहुत अनुशासित बल्लेबाजी की। भारतीय खेमा खुश, अभी भी एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए। तिलक वर्मा अपने आप को पूरा वार्म अप करते हुए। जिस तरीके से यहां पर परिस्थितियां बनी हैं, अब नॉर्मल और नेचुरल क्रिकेट की जरूरत है। हड़बड़ाहट का कोई स्थान नहीं है इन परिस्थितियों में, क्योंकि भारतीय टीम को 12 गेंदों के ऊपर 17 रनों की आवश्यकता है। दबाव पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर है, क्योंकि यहां पर अगर 1-2 बड़े शॉट आए तो पाकिस्तान के लिए सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी इस एशिया कप के फाइनल में।
तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी की। एक व्यवधान हुआ था, ट्रीटमेंट मिला, फहीम एक बार फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए। खिलाड़ियों का अच्छा इस्तेमाल। इस शॉट की हम चर्चा कर रहे थे प्रवीण अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि ऑन साइड में फाइन लेग और स्क्वायर लेग पर मौजूद जो फील्डर है वो 30 गज के दायरे में है, इसलिए तिलक वर्मा उस क्षेत्र को लगातार देख रहे हैं। इस बार सफलता भी मिली उन्हें, क्योंकि जो ऑफ साइड का फील्ड वो पैक कर रखा है, कवर पॉइंट पे बाउंड्री राइडर है, एक बैकवर्ड पॉइंट पर बाउंड्री राइडर ने रखा है और ऑफ स्टॉप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और तिलक वर्मा गेंदबाज से ज्यादा आउट स्मार्ट हो रहे हैं और गेंद को ऑन साइड पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गैप अगर मिला तो गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी 4 रन। क्या इस बॉल पर एक बड़ा शॉट आ रहा है? शिवम दुबे स्ट्राइक पर है, सोच उनकी यही है, अगर हिटिंग जोन में बॉल मिली तो स्टैंड्स तक दिखेगी बॉल। चेंज ऑफ पेस, चलो रनों का पहिया तो चलता रहेगा इस एक रन की मदद से। और मनोज, जब भी आपने कोई डिमांड किया वो पूरी हुई है। आपने डिमांड की थी कि 140 रन से 45 में टीम आउट हो जाए, वैसा ही हुआ। और जब आपने कहा था भारतीय टीम को छक्के की जरूरत है तो अंतिम गेंद के भी 6 रन आए, तो आपकी हर डिमांड पूरी हो गई। चेतन पाने तो प्री मैच शो में भी कह दिया था कि 160 से नीचे नीचे पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो जाएगी। तो आप समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि सरस्वती माँ आपकी वाणी में विराजित होती हैं, विराजमान रहती हैं। डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर्स, इससे बच करके रहना होगा। इससे चेंज ऑफ पेस था, लेकिन अच्छा कनेक्शन, 1 रन आसानी के साथ। अब 3 गेंदें बाकी हैं इस ओवर के, भी बाउंड्री स्ट्रोक नहीं आया है और कोशिश दोनों बल्लेबाजों की जा रही है कि गेंदबाज को आउटस्मार्ट किया जाए और एक बड़ा स्ट्रोक खेला जाए। शिवम दुबे उन्होंने 19 गेंदों को 29 रन बनाए हैं, बड़े स्ट्रोक्स भी खेले हैं। भारत को जरूरत है कि इस ओवर में एक बाउंड्री स्ट्रोक, बड़ा बाउंड्री स्ट्रोक आना चाहिए। फहीम की अगर गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने निश्चित रूप से प्रभावित किया है। कंडीशंस उतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन उन्होंने लगातार चेंज ऑफ पेस के बल पर मुश्किलें पैदा की हैं। बढ़िया शॉट, जोरदार ताकत, फील्डर मौजूद, दर्शक बन के आ जाएंगे। 4 रन जुटाए शिवम दुबे ने। और उस बार मैंने डिमांड की थी कि बाउंड्री स्ट्रोक आना चाहिए और मेरी डिमांड पूरी होती हुई। अब बचे हैं 8 गेंदों पे 10 रन, 137, 4 विकेट नुकसान पे। क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला वहां पर शिवम दुबे ने। देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर आगे थे, बाहर निकले और कैप कर गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बीच में से 4 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर शिवम दुबे के बल्ले से। और टीम जब इस तरीके का प्रदर्शन करती है तो जो चयन समिति के सदस्य होते हैं उनके लिए भी बहुत राहत की सांस रहती है, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं सिलेक्टर्स को। लेकिन भारतीय टीम ने इस एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया है। बॉल फेंकने में सफल रहे। इसी लाइन ऑफ लेंथ की हम बात कर रहे थे कि फहीम ने इस फाइनल मैच में निश्चित रूप से सभी को प्रभावित किया और बहुत अच्छा एफर्ट रहा उनका। जिस तरीके से गर्म और उमस भरे मौसम में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है बॉलर्स के लिए। नजदीकी मामला था, इंडिकेटर लाइन के आसपास से बॉल निकली थी, लेकिन जो एक एडवांटेज होता है बेनिफिट ऑफ डाउट गेंदबाजी करते हुए, वो फहीम के पक्ष में गया। और मेरी डिमांड है मनोज कि अंतिम गेंद में बाउंड्री स्ट्रोक आना चाहिए। क्या मेरी डिमांड पूरी होती है? ये शिवम दुबे को पूरी करनी होगी। चलिए उम्मीद करते हैं एक बड़ा शॉट फिर से। कनेक्शन स्टाफेड, बॉल पहुंची लाइन के पास, अफरीदी मौजूद थे, उतनी ताकत नहीं लग पाई कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। इसी के साथ भारत ने शिवम दुबे के रूप में एक महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, 33 रन बनाने में सफल रहे, लेकिन गलती की जिसका खामियाजा विकेट के रूप में। अंतिम गेंद में बड़ा विकेट मिलता हुआ वहां पर पाकिस्तान को, और चेंज ऑफ पेस था वहां पर। स्ट्रोक तो बढ़िया खेला था, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर लाइन ऑफ फील्ड लंबे करते खिलाड़ियों ने जब लगा के कैच को पकड़ा और भारत को 5वां छक्का लगता हुआ। तिलक वर्मा ने बढ़िया काम किया। रिंकू सिंह आए हैं, T20 कैरियर, 25 इनिंग्स, 540 रन, 69 सर्वाधिक अफगानिस्तान के विरुद्ध बेंगलुरु में, 3 अर्धशतक उनके नाम। तिलक वर्मा ने 50 के निकट पर 60 रनों का योगदान दिया है, शानदार बल्लेबाजी की है।
3 विकेट गिरने से जो दबाव बना था उस दबाव का असर, और यहां पर इशारा है अंपायर का। 5 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में रहेंगे क्योंकि शेड्यूल टाइम से ऊपर ओवर रेट चला गया पाकिस्तान का। आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन, एक फायदा मिल सकता है। क्षेत्र में खेलना चाहते थे, पहला रन 3 गति के साथ किया रिंकू सिंह, आसानी के साथ पहुंचने में सफल रहे। 2 रन के साथ शुरुआत की इस ओवर की भारतीय टीम में, दोनों रन तिलक वर्मा को मिले हैं। ये अच्छी बात है। तिलक वर्मा स्ट्राइक पर रिंकू सिंह बड़े स्ट्रोक पे जाने जाते हैं, अगर एकदम आकर स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है किसी बल्लेबाज के। 8 रन चाहिए 5 विकेट पर। तिलक वर्मा ने बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की है। पाकिस्तानी कोच, भारतीय कोच दोनों ही तनाव में लगे हैं। प्रेशर तो रहता है, फाइनल मैच ट्रॉफी दांव पर, और इस एशिया कप में बहुत कुछ घटित हुआ है, हम सब ने देखा। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर भारतीय टीम इस एशिया कप को जीतने में सफल रहती है, कहीं ना कहीं जो सिलेक्टर्स ने टीम का चयन किया था उस पर सही की मोहर लग जाएगी। अच्छा कनेक्शन, बढ़िया शॉट तिलक वर्मा के बैट से। लाजवाब स्ट्रोक खेला वहां पर तिलक वर्मा ने। जानते थे कि ऑन साइड पे जो फील्डर है मिड ऑन के और मिड विकेट के पास है, और स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर नहीं है। गेंद को सही कनेक्ट किया, अपने रिस्क का अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। अब फासला केवल 2 रन का 5-4 के दूर। फील्डर प्लेस कर रखे हैं बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट पे, लेकिन तिलक वर्मा के इरादे कुछ और है। उन्होंने पहले से दे दिया था बीच मिड विकेट क्षेत्र में, और ये वो शॉट गौतम गंभीर ने पहली बार रिएक्ट किया है, वो खुद सा दिखाई दिया उनके चेहरे पर। वेरी वेल प्लेड तिलक वर्मा, शानदार बल्लेबाजी, सभी फैंस को खुश कर दिया। जो वादा किया था वो करके निभाया खेल के मैदान में। और मौका फाइनल मैच एशिया कप वर्ल्ड 2025 का। वेरी वेल प्लेड तिलक वर्मा। 2 रनों की आवश्यकता, बची हुई 4 गेंदों के ऊपर। फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। स्कोर इज इक्वल। अब स्कोर टाई हो चुका है, 3 गेंदें 1 रन चाहिए, और रिंकू सिंह के पास मौका है कि वो जो है विनिंग स्ट्रोक लगाकर अपना नाम भी इतिहास में दर्ज कराए हैं। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है, खासकर तिलक वर्मा ने क्या डिफरेंट बल्लेबाजी की है। गए हैं समझाने के लिए, बात करने के लिए। ये अच्छी बात है कि आप सीनियर पार्टनर हैं, अपने नए खिलाड़ी के साथ बात कीजिए, बड़े आराम से एक छंद निकालना है और उसे निकालकर जीत दर्ज कीजिए और उस ट्रॉफी पर कब्जा कीजिए। रिंकू सिंह जब भी स्ट्राइक पर आते हैं तो मुझे शाहरुख खान को वो डायलॉग याद आ जाता है, रिंकू ये तूने क्या किया, जो उन्होंने ट्वीट किया था जब इन्होंने 5 बाउंड्री 6 लगाए थे आईपीएल के उस मैच में। चलिए रिंकू सिंह के पास मौका है विजय रन बनाने का। आप विजय रन बना लिया रिंकू सिंह ने। भारत ने एशिया कप वर्ल्ड 2025 का जीत लिया 5 विकेट से। वेरी वेल प्लेड। तिलक वर्मा जीत के हीरो रहे, नायक नहीं बल्कि महानायक रहे, हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो बन के उभरे तिलक वर्मा इस फाइनल मैच में। शानदार प्रदर्शन तिलक वर्मा के बैट से। एक और ट्रॉफी भारत के कब्जे में, एशिया कप भारत ने जीता। 41 साल के बाद भारत और पाकिस्तान फाइनल में खेल रहे थे, पर भारत ने जीत का अभियान जारी रखा और एशिया कप जीत कर दिखा दिया कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ T20 टीम है भारत। शानदार प्रदर्शन, 3 विकेट गिरने से दबाव बना था भारतीय टीम के ऊपर, लेकिन तिलक वर्मा ने मानसिक मजबूती दिखाई, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी की और दिखाया कि किस तरीके से दबाव और तनाव को हैंडल करते हुए, निर्णायक मौकों पर कम से कम गलती करते हुए अपनी टीम की जीत के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और पाकिस्तान जैसी टीम के विरुद्ध एक हारी हुई बाजी जितवाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की और जैसा कि प्रवीण हम चर्चा भी कर रहे थे, एशिया कप वर्ल्ड 2025 की जब भी चर्चा होगी खासतौर से फाइनल मैच की, तो तिलक वर्मा की इस पारी को हम भूल नहीं पाएंगे। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया, दबाव और तनाव को झेला, अनुशासन के साथ बल्लेबाजी की, और एक बार जब आप अनुशासन के साथ शुरुआत करते तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास के साथ आप आकर्षक और आक्रामक स्ट्रोक्स आसानी के साथ लगा सकते हैं। खुशी के क्षण भारतीय फैंस के लिए, भारतीय टीम के लिए, भारतीय कोच के लिए, भारतीय सेलेक्टर्स के लिए, पूरे बीसीसीआई के लिए। भारत बना चैंपियन एशिया कप 2025 का।
There go the fireworks begin. The unbeaten team in the tournament wins the Asia Cup. And it's India. They win it by... Certainly deserved this win, even though there were two little hiccups. Pakistan just not scoring enough runs, that's the bottom line. It's a really happy bunch of players from India. Superb stuff from India. There's the captain, he's absolutely delighted with his team and signaling to the supporters as well. Samson played his role, and he's gave the big bear hug to Tilak Varma because of his 69 off 53 balls, 4 sixes and 3 fours. Rinku just had the one delivery, got a boundary to steer them home. So superb stuff from India to get up by 5 wickets. Look at these happy supporters from India. No one's budged at this ground. It's been a magnificent atmosphere throughout the entire game. It's just been good to see. And Kuldeep, he certainly played his role, that's for sure. Bowled absolutely beautifully, picked up 4 wickets, 3 wickets in his last over as well, and 17 wickets throughout the tournament. So really good stuff from Kuldeep. They're pretty relaxed at the moment, but they'll be very proud of themselves, that's for sure. Right, let's go downstairs now to Sanjay. Well, I thought it was appropriate that Rinku Singh has to be the man that we talk to because he's played how many balls in the tournament? Only one. Yeah, the ball that mattered. यार तो कोई मैटर नहीं करता सर. ये था कि अगर जितना भी बॉल मिलता है उतना कंट्रीब्यूट करूँ अपनी टीम के लिए और वही हुआ लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था ना 3 बॉल पे तो शॉट लगा अच्छा था. Yeah, because I was watching you take your stance and I was there with Simon Toole and I said watch the first ball because that is exactly I thought would happen. यही दिमाग में रहता है कि सर सबको पता है कि मैं फिनिशर रोल में माना जाता हूँ तो वही मौका आज भी मिला था तो एक ही बॉल मिली कोई नहीं टीम जीती है तो अच्छा बॉल है सर. And that ball could have pitched anywhere and you were thinking of going for the big one. हाँ सर कहीं भी. Well done Rinku, congratulations. Thank you sir. Simon. Yeah, Sanjay, thanks. I've got Moy Morgan alongside me. Moy, how good does that one feel? And talk me through the bowling performance, your specific role. Yeah, special performance by the boys tonight. We were slightly behind the game in the second innings after slow power play with the bat. But yeah, I thought the guys summed up the conditions of the ball quite well.